Good morning students. I'm your science teacher, class 8. Today I'm going to start your chapter number 1. It's crop production and management. Actually crop production क्या होता है और उसके मैनेजमेंट के बारे में हम इसमें स्टडी here we study about the crops and what kind of crops, how many types of crops and management. So these are the learning objectives. So at the end of this chapter students will be able to understand. स्टूडेंट्स इस चैप्टर के एंड में ये समझने में उनको आसानी होगी द क्रॉप्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी इन दिस चैप्टर अबाउट द क्लासिफिकेशन. सो क्रॉप्स इट मीन्स वी कैन से क्रॉप इन हिंदी इज फसली. क्रॉप इनको हिंदी में क्या कहते हैं? फसली. As we know, classification, basic practices of crop productions. Crop का production किस तरीके से होता है? That how do you prepare the soil for cultivation? हम अपनी soil को, it means अपनी मिट्टी को cultivation के लिए कैसे prepare करते हैं? खेती के लिए हम soil को कैसे तैयार करते हैं? What are manures, fertilizers and their importance? Actually, what are manures and fertilizers? Two type of manure, M-A-U-R-E. First is manure and second is fertilizer. And what and their importance और इनकी importance क्या होती है? So what are the methods of selection and sowing of seeds? So third is seeds. We can say seeds in Hindi is बीज. Seeds को हम बीज भी कहते हैं. So the meaning of sowing is बोना. That what do you mean by irrigation and their methods? That next what are crops protection and their methods? हम क्रॉप का प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? मीन्स हम अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं और किस तरीके से बचा सकते हैं? What do you mean by harvesting? These are the other words in agriculture. Is a harvesting. So what is harvesting? Harvesting. In Hindi, we can say harvesting is काटना. Threshing. So we can say, in other words, threshing is actually what is the threshing? Threshing is the process of loosening of the edible part of grain from the grass. It means जो हमारी लेग्यूम्स होती हैं, जो हमारी फलियां होती हैं, उनके दानों को उन फलियों से अलग करना, इट्स कॉल्ड थ्रेसिंग. विनोविंग, दिस इज द अदर वर्ड्स. विनोविंग. It means we can say winnowing in Hindi is छांटना. So and storage of food grains. After that in last कि हम फूड की ग्रेन्स को कैसे स्टोर करते हैं. So what is green revolution? Next what are crop rotation and mixed cultivation? The food obtained from animals. So first of all living organisms require food. As we know that all living things require food. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है. It is very hard to imagine even a single day without food. It's very difficult if we don't take any kind of food that we cannot do any kind of work. So it is very hard. यह सोचना बहुत मुश्किल है इवन अ सिंगल
होल डे, एक दिन भी आप बिना भोजन के नहीं रह सकते, और जब आप भोजन नहीं करेंगे तो आप वर्क नहीं कर पाएंगे। सो वी रिक्वायर एनर्जी टू डू वर्क, टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। हमें अपने लाइफ के प्रोसेस को चलाने के लिए हमें फूड लेना पड़ता है, हमें फूड करना चाहिए। इट मीन्स हमें खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में क्या जनरेट हो, एनर्जी हो, लाइक रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन। इट मीन्स हमारे रेस्पिरेशन के लिए और हमारे डाइजेशन के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। जैसा कि हम जानते हैं जो ये ग्रीन प्लांट होते हैं, इट मीन्स लॉट्स ऑफ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड, वो अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं, जो बनाते हैं ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एज वी नो दैट plants has a process is of photosynthesis. Actually, what is photosynthesis? The reaction of photosynthesis is it means the presence of sunlight. This process is completely done by sunlight, chlorophyll. It is carbon dioxide. It means plants take carbon dioxide and water and makes food. It means glucose plus oxygen. So we get oxygen from this process. Animals are unable to make their own food. जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, and obtain their food from plants and other animals. वो अपना फूड किससे लेते हैं? प्लांट से और एनिमल से. In order to produce food, man start growing plants and domesticating useful animals. In order to produce food की प्रोडक्शन के लिए और बहुत सारी डोमेस्टिक और बहुत सारे प्लांट्स के ग्रो के लिए, इट मीन्स एंड डोमेस्टिकेटिंग यूजफुल एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स का जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, उनका यूज किया जाता है, गिविंग राइज टू इस एग्रीकल्चर. इट्स नोन एज द अदर थिंग्स इज एग्रीकल्चर. The practice of raising plants and rearing animals for food and other useful product is known as agriculture. As we know that कि plants के rise के लिए और food किस चीज़ के लिए? Food के लिए, और हमें useful products को obtain करने के लिए हम क्या करते हैं? Plant को rise करते हैं और बहुत सारे animals का पालन पोषण. The meaning of rearing, R-E-A-R-I-N-G. It means in Hindi पालन पोषण is known as agriculture. इसको भी एक तरीके से agriculture कहते हैं. So crops. First is 1.1 is crops. Some type of plants being cultivated and one place on a large scale. It means कि जो कुछ प्लांट होते हैं वो एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर, वन प्लेस पर, बहुत कुछ प्लांट्स को एक ही स्थान पर लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है. इट्स कॉल्ड अ क्रॉप. और उन्हें क्या कहते हैं? क्रॉप. इट मीन्स फसलें. फॉर एग्जाम्पल राइस, चावल, वीट, गेहूं. सो नेक्स्ट द प्लॉट ऑफ लैंड यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स. क्रॉप के प्लांट्स के कल्टिवेशन के लिए, इट मीन इनकी खेती के लिए जो लैंड हम यूज करते हैं, इट इज नोन एज एग्रीकल्चर फील्ड. उसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर फील्ड. नेक्स्ट so this is the page number 2. Based on the useful product के बेस पर obtained from them crop can be classified. Now here crop can be classified into first is cereal crops. First is cereal crops. It means जिनसे हमें अन्न मिलता है. They are grow for their seed grains. इनका ग्रो किससे होता है? उनकी सीड की ग्रेन से. It means seed.
It means beach. Which are rich in starch and fibers. जो स्टार्च में और फाइबर में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं. It means इनमें स्टार्च और फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है. Example: wheat, rice, maize. These are the examples of cereal crops. The example of cereal crops is, first is wheat, second is rice, and third is maize. It means गेहूं, चावल और मक्का. So second is fiber crops, in which we obtain from fibers. Grown for fibers, इनसे हमें क्या मिलता है? फाइबर्स मिलता है. यूज्ड इन क्लोथिंग, जिसका हम यूज किसमें करते हैं? क्लोथिंग में. एंड अपहोल्स्ट्री, इट मीन्स जो हमारा घर का सामान होता है, राइट? जस्ट लाइक अ क्राफ्ट, उसमें हम इसका यूज करते हैं. एग्जाम्पल: जूट एंड कॉटन. सो एग्जाम्पल ऑफ हियर, एग्जाम्पल ऑफ फाइबर क्रॉप्स is, first is jute and cotton. These are the example of fiber crops. Third is pulses or legume. In Hindi we can say pulses, dalein. Legumes means फलियां. So they are rich source of protein. It means I can say they have large amount of proteins. इनमें बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन होता है. Example: pulses, gram and beans. These are the examples of pulses or legumes. So fourth is oil yielding crops. It means we get oil. So we get oil from these type of crops. So can say these are the oil yielding crops. They are rich in edible oil. It means इनमें बहुत ज़्यादा oil होता है. So groundnut, मूंगफली, sunflower, सूरजमुखी, mustard means सरसों. So next is sugar yielding crops. It means we obtain sugar. So we can say sugar yielding crops, they have high sugar content. इनमें sugar के contents बहुत ज़्यादा high होते हैं. Example: sugarcane. Sugarcane is example of sugar yielding crops. It means गन्ना. So sixth is vegetables. They have high water content. It means it have the large quantity of water, high water content and are rich in minerals. इसमें इन वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड विटामिन्स एंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स. और जो हमें कहाँ से मिलते हैं? लीव्स से, स्टेम्स, रूट्स एंड फ्लावर्स. एग्जाम्पल: स्पिनच, पोटैटो, कैरेट एंड cauliflower. So these are the minerals. So we have here about discuss minerals and vitamins. So kind of minerals, just like minerals is, first is iron and second is calcium. We get iron from spinach and calcium from milk. These are the minerals. And what are the vitamins? Vitamins, we get vitamins from lot of vegetables, just like green vegetables like carrot and so many examples. Seven is fruits. They are also rich in water content. It means इनमें water की जो percentage होती है, highly water found in this, so rich in water content and minerals also. And other dissolved nutrients, in which find dissolved nutrients. इनमें ऐसे nutrients होते हैं जो इसमें dissolve हो जाते हैं, just like apple and mango. So
The example of fruits is apple and mango. So 8 is spices. We can say spices in Hindi in masale. These are the flavoring plant products. It means इनमें फ्लेवर होता है एक तरीके का. Adding taste to the food, जिन्हें हम अपने फूड में टेस्ट के लिए ऐड करते हैं. एग्जाम्पल पेपर, जिंजर, क्लोव्स. पेपर काली मिर्च, जिंजर अदरक, क्लोव्स लौंग. So here cloves and pepper. These are the example of spices. So next is two types of cropping patterns are followed in India. India में two types का क्रॉप का पैटर्न्स पाया जाता है. लाइक बेस्ड ऑन सीजन, जो किस पर बेस्ड होता है, सीजन्स पर. सो आई कैन से इन इंडिया फाउंड टू टाइप ऑफ क्रॉप पैटर्न्स एंड ऑन देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस. इट्स आल्सो डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन कि हमारे कंट्री में किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं. लाइक these are the climatic condition is temperature, rainfall, humidity. These are all the climatic conditions. These climatic conditions vary from one place to another place. ये जो climatic conditions होती हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी करती रहती है. इट मीन्स एक जगह बहुत ज़्यादा है तो दूसरी जगह फिर ये बहुत कम हो जाती हैं. Therefore, a variety of crops are grown in different parts of India. As we know that the variety of crops, it means crops are found in India in different places. So these cropping patterns are Rabi crops and Kharif crops. So here two types of crops patterns. First is Rabi crops. So crops, these kind of crops grown in winter. First is Rabi crops. Here types of crops. It means crops कितने टाइप की होती हैं? How many types? So A is Rabi crops and B is Kharif crops. Kharif crops. So what is Rabi crops and what is Kharif crops? Crops grown in winter. It means that kind of crops in winter season. It means जाड़ों में are known as Rabi crops. उनको हम Rabi crops कहते हैं. They are planted in October. उन्हें अक्टूबर में प्लांट किया जाता है. It means that kind of crops planted in October. इस फसल को अक्टूबर में प्लांट किया जाता है, अक्टूबर में इसको लगाया जाता है and harvested in the month of March or April. और मार्च और अप्रैल के मंथ में इसको हार्वेस्ट किया जाता है. इट मीन्स इसको काटा जाता है. जस्ट लाइक व्हीट, बार्ले, ग्राम, पी एंड मस्टर्ड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स. सो आई कैन से द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स. एग्जाम्पल इज wheat, second is barley and so many. B is kharif crops. Actually what is kharif crops? So crop sown during the rainy season. The meaning of sown, it means इसको बोना. crop, इस crop को during the raining season के बाद इस crop को बोया जाता है are known as खरीफ crops. और हम इसे क्या कहते हैं? खरीफ की crops. They are planted. These kind of crops are planted in June month and harvested in September. और उनको सितंबर में इसको काटा जाता है. So खरीफ crops includes paddy, sugarcane, धान,
The example of kharif crops. Example is kharif crops is paddy, dhan. These are the important example of kharif crops: paddy, sugarcane, dhan, ganna, and groundnuts. मूंगफली. So खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर. खरीफ की फसलों को ग्रो होने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है. So next is this is the maize plants, मक्का के plants and groundnut plants. You seen here this is the groundnut plant. So basic practices of crop productions. So to ensure a crop production, good crop yield several activities. वो कहते हैं कि इसमें कि एक अच्छी फसल को तैयार करने के लिए, गुड क्रॉप के लिए हमें बहुत सारी जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटी को करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू टाइम. These activities are known as agricultural practices. So it is known as agricultural practices, which are listed below. These are the agriculture practices. So first is preparation of soil. इस soil को हमें कैसे तैयार करना है. So selection and sowing of seeds. First of all, we selected the seeds, and after that we sowing the seeds. C is irrigation, सिंचाई. Weeding, छाटना. Crop protection. हम crop का protection कैसे करते हैं. Harvesting, काटना, and after that in the last is storage, कि हम crop को कैसे store करते हैं. So we have that kind of machine and tools. So many kind of machines and tools used for agriculture practice. बहुत सारी machines और tools agriculture के लिए use किए जाते हैं. Is known as agriculture implements. उन्हें हम क्या कहते हैं? Agriculture implements. So first of all, preparation of soil. How we preparation of soil? कि हम soil को कैसे तैयार करते हैं? So before sowing the seeds को बोने से पहले the soil should be prepared for good yield. हमें soil को अच्छे तरीके से तैयार करना चाहिए. It means we sowing the seed, soil should be prepared. 3 steps are involved in the soil preparation. These are the 3 steps in which we soil prepare. So first is plugging. So plow. So first is plugging. The meaning of plugging is jotna. So in the sense, the process of losing and turning of soil. What is the meaning of losing? The meaning of loosening is soil lose. वहाँ पर soil बहुत ज़्यादा आके lose हो जाती है, ढीली हो जाती है. And turning of soil का एक दूसरे के ऊपर turn करना. It's called tilling or plugging. It is done by plow, hoe or cultivator. This process is completely done by plow, hoe or cultivator. Actually, what is plow? In Hindi we can say plow, हल. It is a wooden implement. ये एक तरह का लकड़ी का implement होता है and contains a strong triangular iron stick. और इसमें एक लंबी strong iron की strip होती है, पट्टी होती है, called plow share. Main part of plow is a long log of wood, or here it is a iron plow and this is a wooden plow. Wood known as plow shaft having a handle of one end. जिसका दूसरी तरफ का जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है? वो लोहे का बना होता है. So the other end is attached to a bee placed on bull's necks. और उसका जो दूसरा सिरा होता है बुल यानी कि बैल, उसकी नेक से बंधा हुआ होता है. A pair of bulls and a man operate the plow. उसके बाद
अ पेयर ऑफ बुल्स, यानी कि जो बुल्स का जोड़ा होता है, जो बैलों का जोड़ा होता है, जो टू बैल्स आर आल्सो इन्वॉल्व फॉर द प्लगिंग एंड मैन उसको फिर ऑपरेट करते हैं। इसके बाद मैन जो होते हैं, जो मनुष्य होता है, वो खेत को जोतना शुरू करता है। आयरन प्लग्स हैव नॉट रिप्लेस्ड वुडन प्लग्स। So we can say nowadays आयरन प्लो, इट मीन्स जो लोहे के प्लो हैं, लोहे के जो पुल हैं, उन्होंने लकड़ी के प्लो को रिप्लेस किया है। उनकी जगह आजकल हम लोहे के हल को यूज करते हैं, दैट इज हो। नेक्स्ट इम्प्लीमेंट इज हो। इट इज अ सिंपल टूल फॉर रिमूविंग वीड्स। ये बहुत सिंपल टूल्स होता है जिसमें हम वीड्स, इट मीन्स वीड्स, द मीनिंग ऑफ वीड्स इज छोटी छोटी हरी घास, उसको रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड लूजिंग अ सॉइल, और सॉइल को लूज करने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग वुडन और आयरन रॉड। हेयर यू आर मेकिंग, ये आयरन रॉड का बना होता है विद ए स्ट्रॉन्ग बेंड प्लेट ऑफ आयरन। यहाँ पर इसकी जो एक यहाँ पर आयरन की प्लेट होती है स्ट्रॉन्ग, फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड, जो कि इसके एक एंड पर यहाँ पर फिक्स रहती है, which works like a blade। यहाँ से already you have seen in this picture, this is the blade। Next is cultivator, a tractor driven implement। Cultivator is also, how we can say in other words, as other kind of implements is tractor। implement for plugging, इसका यूज किस लिए किया जाता है, इस टूल्स का प्लगिंग is known as cultivator, खेत को जोतने के लिए। So this is the cultivator driven by a tractor। In this picture you see। So next, advantages of plugging। Which kind of advantages of plugging? It means कि हमें plugging से क्या advantage मिलती है? It provide aeration to the roots। वो रूट्स में एरिएशन, इट मीन्स जो एयर है वो रूट्स में आसानी से चली जाए, वो प्रोवाइड करता है एज एयर स्पेस। और हमारी रूट्स में, प्लांट्स की सॉइल की रूट्स में एट एयर स्पेस, वो एयर के स्पेस के लिए जगह बनाता है सॉइल में, आर क्रिएटेड मेकिंग इट इजिली टू ब्रीथ, जिससे वो आसानी से ब्रीथ कर सके। रूट्स कैन ग्रो डीप इन द सॉइल, और हमारी सॉइल में और हमारी मिट्टी में जो रूट्स हैं वो आसानी से ग्रो कर सकें। थर्ड इज वीडिंग इज इजियर इन लूज सॉइल। इट मीन्स जो सॉइल होती है, मिट्टी लूज हो जाती है और उसमें से वीडिंग करना आसान हो जाता है। फोर्थ इज हेल्प इन ग्रोथ ऑफ earthworm and microbes in soil, which are important decomposer। So we can say earthworm and microbes is also a decomposer। वो कहते हैं कि help in growth of earthworms, ये earthworm की और microbes की ग्रो के लिए भी हेल्प करता है। और न्यूट्रिएंट्स एंड मेकिंग द सॉइल ह्यूमन रिच, जिससे हमारी जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और हमारी सॉइल कैसे हो जाती है, ह्यूमस रिच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमस? इट मीन्स नमी, हमारी सॉइल में बहुत ज्यादा नमी आ जाती है। सो फिफ्थ पॉइंट इज इट बिकम इजियर फॉर द फार्मर टू अप्लाई फर्टिलाइजर। और फार्मर्स के लिए ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है फर्टिलाइजर को, आफ्टर दिस प्रोसेस फर्टिलाइजर को सॉइल में डालना। सो सिक्स्थ इज प्लगिंग ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑन द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज इट इजिली। प्लगिंग इज द प्रोसेस, प्लगिंग ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल ऑन द टॉप। प्लगिंग से जो हमारी सॉइल की, मिट्टी की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो बहुत ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, रिच सॉइल हो जाती है ऑन द टॉप, सो दैट प्लांट कैन यूज इट इजिली, और प्लांट उसको आसानी से यूज कर लेते हैं। इट मीन्स हमारी जो सॉइल है उसकी जो ऊपर वाली लेयर्स है उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। सो नेक्स्ट, leveling. Second implements is leveling. Actually, what is leveling? Leveling is done to make the surface of the soil uniform.
As we know, the name of leveling, it means the level of the soil in uniformly. So leveling is done. leveling का क्या काम होता है? Make the surface of the soil, वो जो soil की surface होती है उसको वो यूनिफॉर्म कंडीशन में, एक सी कंडीशन में बनाता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ प्लगिंग, प्लगिंग के प्रोसेस के बाद में. इट इज डन विद द हेल्प ऑफ ए वुडन और आयरन लेवल. ये किसकी हेल्प से होता है? आइदर इट प्रोसेस बाय द डन ऑफ द वुडन, या तो ये लकड़ी के या फिर ये आयरन के लेवलर से कंप्लीट कर सकते हैं इसे. सो एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग. So what is the advantages of bigger chunks of soil? It means जो soil के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं are broken down to smaller pieces. वह बहुत छोटे छोटे पीस में उनको तोड़ दिया जाता है. So prevention of soil erosion by wind or water. What is the soil erosion? So soil erosion is it means we can say Hindi in soil erosion, soil का उड़ना. It means soil erodes by either wind or water. Soil एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जब चली जाती है, it called soil erosion, मिट्टी का कटाव. So prevention, उसको ये क्या करता है? Prevention करता है, उसको ये रोकता है. So third point is promotes uniform irrigation, thus helping in water conservation. ये uniform irrigation. The meaning of irrigation, सिंचाई. It means giving water, पर promotes uniform irrigation. It means एक तरह की सिंचाई को वो प्रमोट करता है. Thus helping in water conservation, जो वाटर के कंजर्वेशन में, वाटर को बचाने में, it means वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करता है. And prevents water logging. It means पानी एक जगह जहाँ इकट्ठा हो जाता है. वाटर लॉगिंग. Water logging. The meaning of water logging is पानी का भरना. पानी का भरना. It means जब पानी एक जगह भर जाता है, जल भराव, जब पानी एक जगह भर जाता है तो उसे वाटर लॉगिंग कहते हैं. So third is adding manures and fertilizers. Manures, खाद और fertilizers, उर्वरक, उनको ऐड करना. So substances which are added to the soil in the form of nutrients. Nutrients की फॉर्म में, पोषक तत्व, nutrients की फॉर्म में हम जिन substances को, जिन चीजों को सॉइल में ऐड करते हैं, अपनी मिट्टी में हम ऐड करते हैं for the healthy growth of plants, प्लांट्स की अच्छी हेल्थ के लिए. So are called manure and fertilizers. उसे हम क्या कहते हैं? manure and fertilizer. So first is manure. It is an organic substance obtained from the decomposition of animal and plant wastes. It is an organic substance. एक organic substance होता है जो किससे मिलता है? From the decomposition of animal and plant waste. Animals और plants का जब waste हो जाता है तो उसके decomposition से हमें क्या मिलता है? Manure. It can be two types. It means जब plants और animals का waste हो जाता है, जब वो सड़ गल जाते हैं, उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो उससे हमें क्या मिलता है? मैन्योर. सेकेंड इज कंपोस्ट. मैन्योर obtained by decomposition of dead plants and animals matter is known as also compost. Manure obtained by decomposition of dead plants, वो मैन्योर जो हमें प्लांट और एनिमल के डिकम्पोजिशन से मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? कंपोस्ट. द डेड मैटर इज पुट इनटू ए कंपोस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोस्ट पिट. इट मींस गड्ढे, गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा. कंपोस्ट पिट. फर्स्ट वी ऑलरेडी अ पिट जिसमें कंपोस्टिंग करते हैं. पिट. The dead matter is put in a compost pit. इस dead matter को compost pit में, this is a dead matter.
डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स एंड टर्न इनटू मैन्योर्स। और इस कंपोज्ड पिट में डिकम्पोजिशन होता है किसका? डिकम्पोज्ड बाय माइक्रोब्स। सो टर्न इनटू अ मैन्योर, तब ये मैन्योर की तरफ टर्न हो जाता है। इट मीन्स इससे मैन्योर बनकर तैयार होती है। सो सेकंड इज फार्मयार्ड मैन्योर। एक्चुअली व्हाट इज फार्मयार्ड मैन्योर? कॉमनली यूज्ड manure in India. So we get which kind of compost in India? It is which kind of manure we obtain manure? It is a farmyard manure. Commonly used manure in India, हमारे इंडिया में जो commonly manure यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? It is obtained from farmyard waste such as cattle. ये हमें कहाँ से मिलता है? किन किन चीजों से मिलता है? Farmyard waste. Which kind of waste? Farmyard waste. Such as जो एनिमल्स फार्मी होते हैं, जो फार्म में पाले जाते हैं, जैसे कैटल, डंग, इट मीन्स गोबर, यूरिन एंड क्रॉप वेस्ट। ऑल दीज आर मिक्सड एंड ड्राइड इन द सन। इन सबको आपस में मिक्स किया जाता है और उसको सन में यानी कि सूरज की रोशनी में इसको सुखाया जाता है। The manure thus obtained is directly used as farmyard manure. ये मैन्योर जो ऑब्टेन किया जाता है इस डायरेक्टली, उसे हम इस फार्मयार्ड मैन्योर को हम डायरेक्टली मैन्योर के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं। देन फर्टिलाइजर्स, दे आर इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। इट इज अ इनऑर्गेनिक केमिकल्स। ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल्स होता है जिसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? फैक्ट्रीज में। दे आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एंड आर द अप्लाइड अ स्मॉल क्वांटिटी। उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं एंड आर अप्लाइड इन स्मॉल क्वांटिटी, और इनको स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में इनको यूज किया जाता है। दे आर इजी टू अप्लाई एंड इजी टू स्टोर। इनको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसको स्टोर कर सकते हैं। एंड दस फेवर्ड अवर मैन्योर्स। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स हेल्प इन इंक्रीजिंग क्रॉप। इट मीन्स yield, but excessive use of fertilizers makes soil less fertile. It means application of fertilizers help in increasing crop. हम अपनी क्रॉप को इंक्रीज करने के लिए, अपनी फसल को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। बट अगर हम एक्सेसिव, इट मीन्स मोर, अगर हम ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर को यूज करते हैं तब वो हमारे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देता है, लेस कर देता है, और उससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है वो लेस फर्टाइल हो जाती है। इट मीन्स उसमें ग्रोइंग कैपेसिटी कम हो जाती है एंड मेक द सॉइल आइदर टू एसिडिक और टू एल्कलाइन। आफ्टर दैट अवर सॉइल टू एसिडिक, फिर क्या होती है हमारी सॉइल, if we get more and more fertilizer used in our soil, then our soil is acidic nature or alkaline nature, alkaline। तो हमारी सॉइल कैसे हो जाती है, एसिडिक हो जाती है और एल्कलाइन हो जाती है। फर्टिलाइजर्स आल्सो लीड टू वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? Water, the other reasons of water pollution is also a large, if we use large quantity fertilizer, then water pollution, ये water के pollution को बढ़ा देता है। So some of the common fertilizers are urea. This is a fertilizer. It is a common fertilizer which is used in our agriculture. The formula of urea is NH2 CO NH2. So urea, ammonium sulfate, potash, nitrogen, phosphorus and potassium, calcium and nitrogen are the other fertilizers, common fertilizers.
So advantages of using manures over fertilizers. If we use first manures, after that we use fertilizers, that which kind of advantages? So first is manure enhance water holding capacity of soil. मैन्योर क्या करता है? वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है. इट मीन्स उसमें पानी हमारी सॉइल कंज्यूम द लॉट ऑफ वाटर. मैन्योर मेक द सॉइल पोरस. और मैन्योर क्या काम करता है कि जो सॉइल, हमारी सॉइल में जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, फॉर इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें हमारी उन छेदों में, सॉइल में, हमारी मिट्टी में उन गैसों का जो एक्सचेंज है वो बहुत आसानी से हो जाता है. सो मैन्योर मेक द सॉइल रिच इन ह्यूमस. और हमारे मैन्योर्स क्या काम करते हैं? जो हमारी सॉइल है उसको रिच इन ह्यूमस, इट मीन्स उनमें ह्यूमस की परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं. एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, जिसमें उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रोब्स आ सकते हैं. फोर्थ इज मैन्योर्स इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर. मैन्योर क्या काम करता है? जो हमारे सॉइल का टेक्सचर है, इट मीन्स उसको भी ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है. एज वेल एज इस वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, जिसमें उसमें वाटर को एक्सेप्ट, वाटर की ज़्यादा जाने की कैपेसिटी उसमें बढ़ जाती है. So next is selection and sowing of seeds. Selection and sowing of seeds. After preparing the soil, first before we have studied about the implements of the agriculture, and next is selection and sowing of beets. What is the meaning of selection and sowing of beets? It means कि हमें seeds means बीज, हमें किस तरह के बीज को सेलेक्ट करना चाहिए, एंड सोइंग मीन्स उनको बोना, कि हमें उनको फिर कैसे बोना चाहिए. आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल, द नेक्स्ट स्टेप इज सीड सोइंग. ऑफ कोर्स सबसे पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद में हम क्या करते हैं? सीड मीन्स बीज, सोइंग मीन्स बोना. उनको कैसे बोया जाता है, इनको मिट्टी में कैसे डाला जाता है. बट बिफोर सोइंग अ फार्मर शुड सेलेक्ट गुड क्वालिटी सीड्स टू एंश्योर मैक्सिमम गेन प्रोडक्शन एंड टू अवॉइड वेस्टेज. पर उससे पहले फार्मर को क्या करना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी के बीज, अच्छी क्वालिटी के सीड्स का सिलेक्शन करना चाहिए, देखना चाहिए, जिससे हमारी जो ग्रेन है उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो सके और हमारी वेस्टेज कैसी हो, बहुत ज़्यादा कम हो, हम अपनी वेस्टेज को अवॉइड कर सकें. फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग सीड्स. इट मीन्स कि हमें सीड्स को सेलेक्ट करने से पहले बहुत सारे इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए. सो हियर सीड्स शुड बी विएबल एंड विद हाई परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन. इट मीन्स हमारे सीड्स ऐसे होने चाहिए जिसमें जर्मिनेशन की जो क्वालिटी है, जर्मिनेशन की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो सके. इट मीन्स बहुत सारा जर्मिनेशन हो सके. बी हाई यील्डिंग वेराइटीज फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट. हमें ऐसे सीड का सिलेक्शन करना चाहिए जिसमें इंसेक्ट, इस मीन कीड़े मकोड़े, कीट शुड बी सिलेक्टेड, कि उसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स और पेस्ट उसमें ना हो. सीड शुड बी ट्रीटेड विथ फंगिसाइड्स. और हमें क्या करना चाहिए? हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए. इट मीन्स उनको बोने से पहले ट्रीटेड विथ फंगिसाइड्स, उसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए बोने से पहले. सो थैंक यू.